Hello dear students, welcome back. In previous class we had studied about the classification of solids, and then we had discussed about the distinction between crystalline solids and amorphous solid. So today we will going to discuss about the classification of particularly the crystalline solids. Okay, so depending on the nature or the type of forces acting between the constituent particles of crystalline solids, these solids are now further divided into four main types of solids. So crystalline solids are now further divided into four types. The first one is molecular solids, second one is ionic solids, third one is covalent solids, and the last one is metallic solids. So this classification of crystalline solids is depending on the type of force acting between their constituent particles. Now let's discuss about the first type of crystalline solid, which is molecular solids. So जिस तरह से नाम से ये क्लियर है that the constituent particles in such type of molecular solid is molecules. Now we know that the classification of crystalline solids are now based on the forces acted between their constituent particles. So, the type of forces acted here in molecular solids is van der Waals type of forces. Okay, so there are three types of van der Waals forces. The first one is London dispersal force, and the second one is dipole attraction forces, and the third one is hydrogen bonds. ओके क्योंकि यहाँ पर तीन तरह के van der Waals फोर्सेस मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में एक्ट करते हैं, दैट्स व्हाई molecular solids are further divided into three categories. Okay, so the first category is non-polar solids. Second one is polar solids, and the last one is हाइड्रोजन बॉन्ड सॉलिड्स. ओके, तो आइए देखते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बारे में. सो नाम से ही जिस तरह से क्लियर है कि इनमें जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो किस तरह के होंगे, नॉन पोलर होंगे. सो मॉलिक्यूल्स मस्ट बी नॉन पोलर. ओके, अब वो जो मॉलिक्यूल्स हैं दे मस्ट बी बॉन्डेड विद कोवेलेंट बॉन्डिंग. उनमें क्या होनी चाहिए, कोवेलेंट बॉन्डिंग होनी चाहिए. अगर उनमें कोवेलेंट बॉन्डिंग है और अगर मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर हैं तो डेफिनेटली देयर आर फोर्स दैट होल्ड दीज नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स टुगेदर. और वो किस तरह का फोर्स होगा, वो होगा लंदन डिस्पर्सल फोर्स. ओके, सो इस तरह के जो सॉलिड होंगे वो सॉफ्ट सॉलिड्स होंगे, मुलायम होंगे, ज़्यादा कठोर नहीं होंगे, and they are base conductor of electricity and they have low melting point because they are soft. Okay, so बात करें लंदन डिस्पर्सल फोर्सेस की, तो ये लंदन डिस्पर्सल फोर्सेस क्या होते हैं. ओके, सो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं. ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल दैट इज क्लोरीन मॉलिक्यूल. ओके, सो हम सबको पता है कि एक क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में देयर आर 7 इलेक्ट्रॉन्स. कुछ इस तरह से. दूसरे क्लोरीन मॉलिक्यूल्स में कुछ इस तरह से होगा. ओके, सो each chlorine atom
need only one electron to complete their octet. Okay, so that's why these two chlorine atoms share one electron to each other and make their octet complete. वो किस तरह से? Like that. Okay, and now this molecule will become this. Okay, so यहाँ क्या होगा कि अब ये बन गया क्लोरीन मॉलिक्यूल, Cl2 मॉलिक्यूल. अब इस पूरे क्लोरीन मॉलिक्यूल के आउटर मोस्ट शेल में देयर आर 14 इलेक्ट्रॉन्स. ओके, सो इस क्लोरीन मॉलिक्यूल्स के आसपास डेफिनेटली देयर आर मोर क्लोरीन मॉलिक्यूल्स, देयर आर मैनी नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, एंड दैट्स वाई अगर हम मान लें फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम दैट more than half electrons get shifted towards one chlorine atom, तो क्या होगा? मान लीजिए कि there are 8 electron or we can say 9 electrons in this chlorine atom. Okay, so क्या होगा? The density of electron increases in this side. Okay, that's why we get partial negative charge this side and we get partial positive charge in this chlorine atom. Okay, so यहाँ पर एक instant dipole बन गया. ठीक है, और वो किस लिए बना? वो बना इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग के कारण. लेकिन अगर पूरे मॉलिक्यूल की बात करें तो ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर हैं. ओके, सो अब इसके पास वाला मॉलिक्यूल्स, मान लीजिए एक इधर मॉलिक्यूल है. ओके, सो यहां पर भी क्या होगा कि इसके इलेक्ट्रॉन पेयर को ये प्लस चार्ज अपनी ओर क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, और इस वजह से यहां पर पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव, यहां पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. इसी तरह से अगर कोई Cl2 यहाँ है तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा और सारा नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा. इस वजह से इधर नेगेटिव चार्ज और इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे. ओके, सो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ शॉर्ट डाइपोल इन द क्लोरीन मॉलिक्यूल एंड दैट्स व्हाई these molecules can try to attract each other, और इनके बीच में एक बिल्कुल ही वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा जिसे हम बोलेंगे लंडन डिस्पर्सल फोर्सेस. ओके, इसी तरह के कुछ और एग्जांपल्स की बात करें तो इनमें होगा H2, साथ ही साथ में I2 और होगा सॉलिड CO2. ओके, तो सॉलिड CO2 जो हैं वो भी एग्जांपल है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का, क्योंकि जो CO2 हैं वो एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है. ओके, और इस मॉलिक्यूल्स में जो ऑक्सीजन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं. दैट्स वाई जो शिफ्ट होगा इलेक्ट्रॉन का वो कुछ इस तरह से होगा और इधर भी कुछ इस तरह से होगा. दैट्स वाई देयर इज अ कैंसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्जेस एंड दैट्स वाई दिस मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर इन नेचर. और जब ये सॉलिड फॉर्म में होगा तो इट बिकम्स अ नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड विच इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड. नेक्स्ट वन इज पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड. नाम से ही क्लियर है कि जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो पोलर नेचर के होंगे, उनमें प्लस और माइनस चार्जेस होंगे मॉलिक्यूल्स के अंदर. ओके, नाउ जो बॉन्डिंग है उन मॉलिक्यूल्स में वो किस तरह की होगी? अगेन कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी, और साथ ही साथ में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनको आपस में बांधे रखता है विच इज डाइपोल अट्रैक्शन फोर्सेस. ओके, so likewise of non-polar molecular solid,
पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स भी सॉफ्ट इन नेचर होंगे, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे, और साथ ही साथ में इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो हायर होगा एज कंपेयर टू द नॉन मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ओके, सो अब इनके एग्जाम्पल्स के बारे में बात कर लेते हैं और इसी के साथ साथ में बात करेंगे कि पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं और उनके अंदर डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स किस तरह से वर्क करता है। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के एग्जाम्पल की बात करें, सो द फर्स्ट एग्जाम्पल इज सिंपल HCl, okay, second one is solid SO2 and another is solid NH3। ओके, सो बात करें HCl की कि किस तरह से ये पोलर मॉलिक्यूल है और पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है। ओके, सो एक तरफ हाइड्रोजन है, एक तरफ क्लोरीन है। हाइड्रोजन के पास अपना एक इलेक्ट्रॉन है, वही साथ में क्लोरीन के पास अपने 7 इलेक्ट्रॉन्स है। और देखा जाए तो हाइड्रोजन को अपने आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और साथ ही साथ में क्लोरीन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। दैट्स व्हाई दे विल शेयर 1 इलेक्ट्रॉन विथ ईच अदर लाइक दिस एंड मेक अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड विच इज लाइक दैट। ओके, और ये मॉलिक्यूल बन जाएगा कुछ इस तरह से। ओके, सो ये HCl का मॉलिक्यूल बन गया। अब क्या हुआ कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हुई, ओके, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, और ये जो क्लोरीन एटम है ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और जो हाइड्रोजन है वो एक लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है। इस वजह से जो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन अपनी ओर खींच लेता है। ओके, और इसी वजह से इस वाले हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इस क्लोरीन के पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं। ओके, सो इधर बात करें तो यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहाँ पर आ गया पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ओके, सो इस तरह का जो डाइपोल होगा वो हर क्लोरीन के मॉलिक्यूल में होगा। ओके, सो एग्जाम्पल की बात करें कुछ इस तरह से। ओके, सो ये क्लोरीन के मॉलिक्यूल हैं, हर एक मॉलिक्यूल डाइपोल हैं, इधर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब क्या होगा, ये सारे मॉलिक्यूल्स आपस में एक फोर्स के द्वारा क्या होंगे, हेल्ड होंगे, बंधे हुए होंगे कुछ इस तरह से। प्लस माइनस माइनस प्लस, इधर माइनस प्लस, फिर इधर प्लस माइनस। ओके, सो इस तरह का जो फोर्स होगा जो इन HCl मॉलिक्यूल्स को आपस में बांधे रखता है। ओके, सो इसी तरह का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि डाइपोल मॉलिक्यूल्स में होगा, इस तरह के फोर्सेस को क्या बोलते हैं हम, डाइपोल अट्रैक्शन फोर्सेस। ओके, इसी तरह से सॉलिड NH3 में भी होगा कि NH3 का जो मॉलिक्यूल है वो कुछ इस तरह से है। ओके, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास है। ओके, और साथ ही साथ में जो नाइट्रोजन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड शेयर हुए हैं इनको नाइट्रोजन अपनी ओर खींच लेगा कुछ इस तरह से। ओके, और यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इन सब के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, और ये मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से बन जाएंगे। ओके, सो यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, और ये सारे क्या हो जाएंगे, डाइपोल मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे और इनमें भी किस तरह का डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स होगा और साथ ही साथ में इस तरह से सॉलिड
SO2 में भी जो है क्या होगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा। और ये एग्जांपल हो गए पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के। सो द नेक्स्ट वन इज हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। ओके, सो इनमें डेफिनेटली क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने वाली है। ओके, सो इस तरह के मॉलिक्यूल जो हैं वो कोवेलेंट बॉन्डिंग से जुड़े हुए होंगे और इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, और ये बेट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होने के साथ साथ में मुलायम होंगे। रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड भी हो सकते हैं और सॉलिड भी हो सकते हैं। ओके, सो अब बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड तो है, उसके साथ साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड भी किस तरह से होगा। सो जो कोवेलेंट बॉन्डिंग है वो एक मॉलिक्यूल के अंदर ही एटम्स में होने वाली बॉन्डिंग है, जबकि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में होने वाली बॉन्डिंग है। ओके, सो ये किस तरह से है, इसका कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं। इसके एग्जांपल हैं H2O हो गया, HF हो गया। ओके, सो इन सब में कॉमन ये है कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा जो कि कोवेलेंट बॉन्डिंग से अटैच होगा एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जो कि या तो ऑक्सीजन हो सकता है, या तो नाइट्रोजन हो सकता है, या तो वो क्या हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है। तो इन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के साथ में हाइड्रोजन के जुड़ने से क्या होगा, इनमें पोलर नेचर आ जाएगा। ओके, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके जो कोवेलेंट बॉन्ड होगा उसको क्या कर देंगे, पोलर कर देंगे। ओके, सो किस तरह से होगा, H2O की बात करें तो H2O का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा कि एक ऑक्सीजन होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ होगा। ऑक्सीजन जो है वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये अपनी ओर क्या करेगा, इस शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और साथ ही साथ में इसके शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को भी अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। इस वजह से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ दोनों पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया, एक तरह से पोलर मॉलिक्यूल बन गया। और जब इसके पास में एक और H2O मॉलिक्यूल होगा जो कि सेम किस तरह से होगा, इसी तरह से होगा। यहाँ दोनों हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, यहाँ इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर भी पॉजिटिव है। तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस वाले नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ओके, सो ये वाली जो बॉन्डिंग आपको दिख रही है जो कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में है, ये किस तरह की बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग है कोवेलेंट बॉन्डिंग। लेकिन जो पोलर नेचर आने के बाद हाइड्रोजन और एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ओके, जो हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव था और जो ऑक्सीजन किसी दूसरे मॉलिक्यूल्स का जिसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज था, जब वो आपस में पास में आए तो उन्हें क्या बोला गया, हाइड्रोजन बॉन्ड बोला गया। ओके, अब इसे बॉन्ड ही क्यों बोला गया, क्योंकि दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वांडरवॉल फोर्सेस। ओके, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वांडरवॉल फोर्स अमंग द 3 वांडरवॉल फोर्सेस। दैट्स व्हाई इसे फोर्स ना बोल के इसे क्या बोल दिया गया, हाइड्रोजन बॉन्ड बोल दिया गया, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट वांडरवॉल फोर्स है। किसके कंपेयर में, ये लंदन डिस्पर्सल फोर्स जो कि वीकेस्ट वांडरवॉल फोर्स था, उसके बाद डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स आया, और सबसे आखिरी में जो सबसे स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स है वो है क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, सो इस तरह के जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होंगे वो हाइड्रोजन बॉन्ड से आपस में क्या होंगे, एक दूसरे से अटैच होंगे। और चूंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट वांडरवॉल फोर्स हैं, तो ये मॉलिक्यूल आपस में ज़्यादा टाइटली हेल्ड होंगे, और इसी वजह से इन सॉलिड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा एज कंपेयर टू द नॉन पोलर
मॉलिक्यूलर सॉलिड और साथ ही साथ में पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की कंपेयर में इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, अधिक होगा। ओके, सो ये हमारी पूरी जो डिस्कशन है वो हो गई मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बारे में।